Assalamu alaikum. So today's discussion is about CSF, cerebrospinal fluid and blood-brain barrier (BBB). So start करने से हमें पहले headlines का पता हो कि हम इसमें क्या क्या cover करने वाले हैं. First of all, what is CSF? Then what's the formation of mechanism of CSF? Then what's the composition of CSF? Then circulation of CSF, then functions, the most important, that what's the function of CSF, why it is necessary, and what's the clinical condition, then and different types of hydrocephalus, what is hydrocephalus, and indication of lumbar puncture, then structure, development, permeability, functions, and clinical implications of BBB, blood-brain barrier. It's very, very important. Then at last, circumventricular organs, that what is this and what are these organs. So let's start with CSF introduction. CSF stands for cerebrospinal fluid. It surrounds brain and spinal cord. So it is basically fluid that is present in supraarachnoid space and the ventricles of the brain. It protects the brain and spinal cord from physical trauma. It is formed by choroid plexus, that is capillaries in the diameter of the ventricles in the brain. CSF is formed primarily by the secretion and also by the filtration from network of capillaries and ependymal cells. So here is the mechanism of formation of CSF. वही जो मैंने आपको बताया कि CSF is formed primarily by the secretion and also by the filtration from the network of capillaries and ependymal cells in the ventricles called choroid plexus. So अगर हम इस पॉइंट का अगर हम नेट पॉइंट लें तो simply it is mainly formed by choroid plexus of ventricles by an active process. Then red, it surrounds brain and spinal cord and it actually protects our brain from physical trauma. It is formed by choroid plexus. It acts as shock absorber, acts as mechanical buffer, acts as cushion between cranium and brain. In this video, actually, I'm gonna discuss the rate of formation of CSF. So let's start. So अगर हम बात करें rate of formation of CSF, cerebrospinal fluid में, so about 20 to 25 ml per hour हमारी बॉडी में बनता है और 550 ml पर डे एडल्ट में CSF बनता है. तो अगर हम कंबाइंड बात करें तो टर्नओवर हमारे पास 3.7 टाइम्स अ डे, मीन्स डे में 3.7 टाइम्स बनता है. ठीक है. अगर हम CSF की पूरी बॉडी में बात करें कि टोटल क्वांटिटी कितनी होती है हमारी बॉडी में CSF की, तो टोटल क्वांटिटी हमारी बॉडी में CSF की जो होती है वो होती है 150 ml. ठीक, ये होती है 150 ml टोटल अमाउंट इन आवर बॉडी. उसमें से 3 to 40 ml विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन होती है. आपको पता है कि ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, देन 3rd वेंट्रिकल्स एंड देन 4th वेंट्रिकल. और जो रिमेनिंग है अबाउट 110 to 120 ml वो हमारे पास है सब अरेकनॉइड स्पेस में. उसमें से भी 75 to 80 ml हमारे पास होता है स्पाइनल पार्ट में. ठीक, 75 to 80 ml स्पाइनल पार्ट एंड 35 to 45 ml क्रेनियल पार्ट में होता है. सो अगर हम समरी करें CSF की टोटल क्वांटिटी हमारी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई या कैसे बनता है, कितना होता है, तो टोटल हमारे पास है 150 ml. उसमें से 30 to 40 ml विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन होती है. हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स है ब्रेन में और 110 to 120 ml हमारे पास होता है सब अरेकनॉइड स्पेस में. ठीक, टोटल मिला के 150 हो गया. अब जो सब अरेकनॉइड में 110 to 120 उसमें से 75 to 80 ml हमारे स्पाइनल पार्ट में होता है और रिमेनिंग 35 to 45 ml हमारे क्रेनियल पार्ट में होता है. और अगर हम बात करें अब प्रेशर की तो वो हमारे पास है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टोटल बॉडी में.
फॉर्मेशन, ये उसकी समरी होगी। जैसे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन टोटल इज 20 to 25 मिलीमीटर पर आवर, देन टोटल एडल्ट में पर डे जो होता है वो 550 मिलीलीटर पर डे, एडल्ट एंटर्स ओवर 3.7 टाइम्स अ डे। CSF की हमारी बॉडी में टोटल क्वांटिटी होती है 150 मिलीलीटर, उसमें से 30 to 40 मिलीमीटर जो होता है वो विद इन द वेंट्रिकल्स। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन आवर ब्रेन, और 110 to 120 ml जो होता है वो सब एरेकोनाइड स्पेस में होता है, उसमें से भी 75 to 80 ml स्पाइनल पार्ट में होता है और 35 to 45 ml हमारे क्रेनियल पार्ट में होता है, ठीक है। और CSF का टोटल प्रेशर होता है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये प्रेशर इंक्रीज होता है इन क्वाड्रेंट साइन। ये क्या है? इट मींस कि CSF इंक्रीज रहता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग, कफिंग, स्नीजिंग, क्राइंग, कंप्रेशन ऑफ इंटरनल जुगनल वेन, इन सब को मिला के कहते हैं क्वाड्रेंट साइन। इसमें क्या होता है, हमारे CSF का जो प्रेशर होता है वो 10 मिलीमीटर से इंक्रीज हो जाता है इन कंडीशंस में। Then CSF is formed at a rate of about 550 milliliters each day. About 2/3 or more of this fluid originate as secretion from the choroid plexus in the 4 ventricles, mainly in the 2 lateral ventricles. Then additional small amount of fluid is secreted by the ependymal surface of all the ventricles and by the arachidonal membranes. Small quantity comes from the brain itself through the perivascular spaces that surround the blood vessels passing through the brain. Then composition of CSF. It's very important. CSF में जो सोडियम होता है वो इक्वल होता है जो जितना प्लाज्मा में होता है। It means they have isotonic property. क्लोरीन जो होता है वो 15% मोर होता है in CSF than plasma. मैग्नीशियम भी मोर होता है in CSF than plasma. पोटेशियम 40% लेस होता है CSF में एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। ग्लूकोज 30% लेस होता है CSF में देन प्लाज्मा। प्रोटीन्स जो होता है वो 20 to 40% मैग्नीशियम लेस देन CSF, और जो सेल होता है वो लेस देन 6, दैट मींस ऑल लिम्फोसाइट्स। और आरबीसीज जो CSF में वो शो करती है ट्रॉमेटिक LP मींस लंबर पंक्चर। देन हमारे पास कंपोजिशन है CSF की। इससे पहले मैं आपको एक फिगर में समझाऊंगी कि CSF हमारे ब्रेन में कैसे सर्कुलेट करता है। कि वेंट्रिकल CSF हमारे ब्रेन में कैसे सर्कुलेट करता है। CSF हमारे ब्रेन में सर्कुलेट करता है थ्रू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल। ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल, from lateral ventricle goes to the third ventricle via interventricular foramen, also known as foramen of Monro. So CSF first lateral ventricle में से third ventricle में आता है via interventricular foramina. Then third ventricle में से fourth ventricle में आता है via cerebral adequata, ठीक। From third ventricle to fourth ventricle via cerebral. It's easy. Lateral ventricle में से third ventricle via interventricular foramina, also known as foramen of Monro. Then from third ventricle to fourth ventricle via cerebral aqueduct, and then from fourth ventricle into subarachnoid space जहाँ पे वो drain हो जाता है और वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है via various arachnoiduli into the venous sinuses. So let's come to our PPT. Circulation of CSF. Lateral ventricle में से third ventricle via foramen of Monro, interventricular foramen. From third ventricle to fourth ventricle via cerebral aqueduct, मैंने आपको फिगर में भी दिखाया. And then fourth ventricle में से subarachnoid space of brain and spinal cord via foramen of Magendie and also foramen of Leschka. वहाँ पर ये क्या हो जाता है, reabsorb via various arachnoiduli into the venous sinuses. एक और भी पिक्चर है मेरे पास इसकी, see this also. ये हमारे पास ब्रेन, ये lateral ventricle, third ventricle, ये हमारे पास interventricular foramen also known as foramen of Monro. थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ये वाया सेरेब्रल एक्वेडक्ट एसोसिएटेड बिटवीन मिड ब्रेन, और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है एसोसिएटेड विद पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम, और ये थर्ड वेंट्रिकल है एसोसिएटेड विद द थैलेमस, और ये लेटरल वेंट्रिकल जो आपको दिख रहा है सी शेप है,
इसका ये एंटीरियर हॉर्न है, ये बॉडी है, ये है इंफीरियर हॉर्न है, और ये हमारे पास और पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल बोन है। एक और भी पिक्चर है मेरे पास, पाथवे ऑफ CSF फ्लो, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल via foramen of Monro, also known as intraventricular foramen. Then fourth ventricle में से subarachnoid space via foramen of Megenji and foramen of Lashka, and then subarachnoid space में से ये reabsorb होता है into venous. Most important is function of CSF: act as shock absorber, act as mechanical buffer, act as cushion between the brain and the cranium, act as reservoir and regulate the contents of the cranium, serve as medium for nutritional exchange in CNS, central nervous system, transport hormones and hormone releasing factors, removes the metabolic waste product through absorption. Number 8 is modulate pressure changes, hence reduces the CSF pressure, thereby ensuring adequate blood supply, hence preventing the neuron killing. And the last is prevent from brain ischemia, as cranial part of SAS has less than CSF 40 ml. This decrease intracranial pressure and has facilitate blood perfusion, and it's also act as auto-regulation of cerebral flow. इसकी क्लिनिकल ये है कि सर्व एज ए डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पसेस। CSF को हम ड्रेन भी करते हैं फ्रॉम लंबर बिटवीन L3 एंड L4 में से हम निडल के ज़रिए CSF को ड्रेन करते हैं टू डायग्नोस डिफरेंट डिजीजेस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लंबर पंचर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्लिनिकल कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस, आल्सो नोन एज हाइड्रोकेफेलस, जो भी आप बोले। इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड CSF वॉल्यूम and pressure resulting in the compression of brain soft tissues. इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल also known as communicating hydrocephalus और दूसरा होता है इंटरनल, दिस इज also non communicating hydrocephalus. Communicating hydrocephalus means कि CSF का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन फ्लो, इसमें प्रॉब्लम ना हो, आइदर प्रॉब्लम कहीं और हो, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस। और इंटरनल हाइड्रोसेफेलस मींस कि जो उसका पाथवे है CSF का फ्लो का, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कहते हैं इंटरनल हाइड्रोसेफेलस। इसमें डिफरेंस है बट इट्स इजी। सी एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज्ड, जहाँ पर CSF एब्जॉर्ब हो रहा था वहाँ पर डिक्रीज हो जाए, या CSF प्रेशर इंक्रीज हो जाए caused by trauma, hemorrhage and infections. और internal और non communicating hydrocephalus means blockage in circulation route of CSF। जो भी हमने पढ़ा कि lateral में से third ventricle या third में से fourth then subarachnoid space, अगर इस flow pathway में कोई भी blockage आ जाए तो इससे internal non communicating hydrocephalus cause हो सकता है, जिसमें CSF प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कंजेनाइटल एट्रेसिया, एक्वेडक्ट और ट्यूमर। ये है पिक्चर बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस, जिसमें CSF जो प्रेशर होता है विद इन द ब्रेन इंक्रीज हो जाता है, CSF का फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, तो एक बेबी का जो हेड है ना वो लार्ज हो जाता है और सॉफ्ट टिश्यूज की कंप्रेशन हो जाती है। एक और भी पिक्चर है मेरे पास इसकी, सी ये है हाइड्रोसेफेलस। देन इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एक हम शंट इंस्टॉल करते हैं सर्जिकली, वो ट्यूब कनेक्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, और अल्टरनेटिव हम एब्डोमिनल कैविटी से वो CSF का जो इंक्रीज अमाउंट है वो हम ड्रेन करते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। A shunt contains one-way valve to prevent reverse flow of fluid. C हम वेंट्रिकल्स ऑफ ये ब्रेन्स और ये ट्यूब और इसमें हम एब्डोमिनल कैविटी में से CSF को जो फ्लूइड है वो हम निकाल लेते हैं। ये है नॉर्मल और ये है हाइड्रोसेफेलिक। देन लंबर पंचर, एक लार्ज नीडल इंसर्ट करते हैं इन द subarachnoid स्पेस वाया इंटरवर्टिब्रल स्पेस एट लेवल बिलो सेकंड लंबर वर्टिब्रा। CSF उसमें से हम ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लंबर पंचर। डन फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पसेस। CSF ऑब्टेन करते हैं, एनालाइज बायोकेमिकली, स्टैंड एंड कल्चर्ड। CSF प्रेशर डिटरमाइन करते हैं, उसमें ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द subarachnoid स्पेस वाया लंबर पंचर
or they may include anesthetic and antibiotics. सी ये है लंबर, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ हम निडल इंसर्ट करते हैं और CSF का जो फ्लूइड है वो हम ड्रेन करते हैं फॉर डायग्नोज और फॉर मतलब डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए। सी ये भी एक लंबर पंक्चर है, बिटवीन L3 एंड L4 हम निडल इंसर्ट करते हैं। देन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर BBB। व्हाट्स दिस? Actually, it protects the brain from harmful agent that may be present in the blood. Now हम ये पढ़ते हैं कि blood-brain barrier कैसे बनता है। It protects brain from blood-borne toxic elements. Endothelial cells of brain of capillary are joined by tight junctions. Substance can only pass via endothelial cell. Astrocytes जो थी वो food process command of this tight junction formation. A similar barrier exists in blood vessels of choroid plexus. It's simply blood-brain barrier क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ब्लड टॉक्सिसिटी। ओके, और ये फॉर्म होता है बाय एंडोथेलियल सेल्स के जो जॉइंट द टाइट जंक्शंस, और फूड प्रोसेस होता है नोन एज एस्ट्रोसाइट। इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन होती है। ठीक, दिस सी ब्लड ब्रेन फॉर्मेशन, ये एस्ट्रोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स और ये टाइट जंक्शंस, इन तीनों को कंबाइन करके ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन होती है। नाउ डेवलपमेंट, नॉट फुली डेवलप एट बर्थ, इंटरनेशनल कर्निक्चर्स और परमिएबिलिटी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं वो सब्सटेंस जो कि लिपिड सॉल्युबल हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, स्टेरॉइड्स, और वो सब्सटेंस या वो पार्टिकल्स या वो मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं करते जो कि प्रोटीन्स हो या प्रोटीन बाउंड हो। So they are impermeable for proteins or permeable for lipid soluble substance। और जिस अदर सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स है या आयंस होंगे, उसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए। Then function, it protects CNS, central nervous system, from chemical fluctuations in blood, prevent entry of harmful elements from blood into CNS, prevent entry of hormones of blood into CNS that could act as neurotransmitters and produce uncontrolled neuronal activity, for example ACTA, CCK, TRH, etc. It also prevents escape of neurotransmitters into blood, limit entry of certain drugs into CNS. इसकी इम्प्लीकेशन है ये है कि फिजिशियन जो है शुड नो कि विच ड्रग्स पेनिट्रेट करेंगे बैरियर को और कौन से ड्रग है जो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को, इन ऑर्डर टू ट्रीट द डिजीजेज ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पता होना चाहिए फिजिशियन को, यही इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक डाउन इन एरियाज ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजरी, जहाँ पर ब्रेन में हमारे पास इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए उस एरिया में ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो टूट जाता है, नहीं होता। ट्यूमर्स, ब्लड वेसल्स, लेड ब्लड ब्रेन बैरियर, tumors can be localized. Brain barrier can be disturbed by sudden and marked increase in blood pressure or by injection of hypertonic fluids. और ये लास्ट हमारा टॉपिक है सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, मींस वो ऑर्गन्स या वो एरियाज जहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, उन ऑर्गन्स या उन जगह को सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन कहते हैं। 4 स्मॉल एरियाज, जो हमारे ब्रेन में 4 ऐसी स्मॉल एरियाज है जहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर BBB नहीं होता। वो कौन सी है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द मीडियन एमिनेंस, areas postrema, organ vascularism of lamina terminalis OVLT, and the last is subfornical organ SFO. These areas either secrete protein or proteins and large molecule act on these. Simply circumventricular organs ऐसी 4 एरियाज ब्रेन में जहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर ना हो उसको सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स कहते हैं। वो कौन सी है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ मीडियन एमिनेंस, या एरिया ऑफ पोस्ट्रीमा, ऑर्गेनिज्म वेस्कुलर ऑफ लैमिना टर्मिनालिस, और सर्कमफोनिकल ऑर्गन SFO। ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। Thank you so much guys. If you like my videos, so kindly like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.